giving their speech, representing themselves in front of all the students. It is good to see all of you. I hope you are all in your uniforms, having ID cards, and you all will be able to share your thoughts with all the students in front of us. And would like to inform you that the university management is only here to support the students. Now, जिससे कि स्टूडेंट्स की आवाज़ हमारे पास पहुँचे, हम एक स्टूडेंट काउंसिल यूनिवर्सिटी के अंदर एस्टेब्लिश करके रखते हैं, जिसका इलेक्शन आज हो रहा है और आज हम अपने लीडर्स को चूज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे 1000, 2000, 3000, 4000 हो सकते हैं। हम सभी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते एक बार। हम कोई वर्किंग SMS मॉडल तो है नहीं, समझ रहे हैं? तो इसलिए स्टूडेंट काउंसिल्स को बनाया जाता है, जिससे कि हम एक स्टूडेंट को बोल सकते हैं जो बाकी आप सभी के पास वो चीज़ पहुंचाएगा और आपकी भी चीज़ हमारे यहाँ तक लाएगा। तो आज आपको उसी को चूज करना है, आपका अपना वैल्यूबल वोट देकर जो आपकी आवाज़ हमारे सामने रखेगा और हमारे भी इश्यूज आप तक पहुँचाएगा। मैनेजमेंट के भी कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के भी इश्यूज होते हैं। हम चाहते हैं कि सब एक साथ रिजॉल्व हो और स्टूडेंट्स भी हमारे हैप्पी रहें और मैनेजमेंट भी हैप्पी रहे। ठीक है, आप लोग अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखें, अपने वोट को तभी दें जब आपको लग रहा हो कि यस यू आर 100% श्योर अबाउट द कैंडिडेट। ठीक है, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग बेताब हैं अपने नेता को चूज करने के लिए। Thank you so much, sir. Now I would like to request our president in charge, sir, to kindly come on the stage for addressing us. Thank you. Namaste, honorable advisor, sir, respected registrar madam, and pyare Vidyapeeth. As I told you when I came this morning in the Sabhagan to see what is going on, and I gave you a short speech regarding discipline. And I would say discipline, discipline, discipline. Discipline is the first thing to achieve success in your life. No matter the elections, exams, your career, plus your social life. So, and same thing Registrar I just told you a few minutes back. You have to maintain the same discipline during this entire election today and tomorrow. Candidates who have nominated themselves for the Jayoti elections. So, very advanced congratulations to all of you and best of luck. Do your best and all the students work for the best. Okay? And now I am giving some guidelines for the voting because you are here. And tomorrow again all the students of the different departments will assemble here and the nominee candidates, all of you will be here to give the speech to them again, okay? And the open Sudhyan auditorium is open for you for today and tomorrow for the youth candidate, okay? To support your team members. Now we are proceeding for the voting, and there are 3 booths: booth number 1, booth number 2, and booth number 3. All the students of physiotherapy department, pharmacy department, homeopathy department, and the students of management, commerce, and law all have to vote today, including hostel, day boarder, all of you. You have to be together on the Surya's auditorium, and there are 3 booths. You all have to go there one by one. At the one time, only one student will be inside the booth. You will have to mention your name, enrollment number, and course. Vote for
because due to their initiation, you all students are going to take part in the democratic pattern of academic functioning. So, first of all, on behalf of the participating faculties, तो आप थोड़ी थोड़ी स्पीच में कम शब्दों में अपनी पूरी बात कहें और अपने लिए वोट कलेक्ट करें। तो सबसे पहले संजना राठौर, तो एक बार यूज क्लैपिंग फॉर संजना राठौर, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्ते ऑनरेबल एडवाइजर एंड CEO सर, respected registrar ma'am, all the higher dignitaries, dean and directors, all faculty members and dear JVN. I JVN Sanjana Khatodia from Rewari, Haryana, pursuing BSc B.Ed PCM first SAM from the Department of Education and Methodology. I nominated myself for the post of SJS, that is Secretary of Jyoti Sangh. So please vote me, support me. I will give my best in whole year and never give a chance to regret on your vote, because I can believe that I can perform this very well. सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आए, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शो मचाएगी। पर हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। नमस्ते CEO and advisor sir, respected registrar ma'am, higher dignitaries, all the dean and directors, faculty members, my seniors, my fellow opponents and my support system, my dear JVN. I JVN Muskan Mewara, pursuing Bachelor of Ayurvedic Medicine Surgery, first crop from the Faculty of Ayurvedic Science from this esteemed university, Jayoti Vidyapeeth Women's University. I am nominating myself for the post of Secretary of Jyoti Sangh, that is SJS. The role of Secretary in the Student Council is pivotal as it demands effective organization, clear communication and the ability to be the voice of students. Firstly, I would like to thank you all. The fact that you are here shows that I have your support. I believe in working as a team and the best results are obtained when the interests of everyone are taken care of, and that's the purpose Jyoti Sangh serves for. कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, लीड पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना दाम के, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हो हासिल मंजिल, राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रहे, मन में ना कोई बहाना रहे, लक्ष्य सामने है, बस उसी पे अपना ठिकाना है। अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगी तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर, किसी और का ना इंतजार कर। नमस्ते ऑनरेबल एडवाइजर एंड CEO सर, ऑनरेबल रजिस्ट्रार मैम, रिस्पेक्टेड डीन डायरेक्टर, all the faculty members and my dear JVN, voters for today. I JVN Priyani from the heart of Rajasthan, that is none other than Ajmer, pursuing Bachelors of Physiotherapy under the Faculty of Physiotherapy and Diagnostics, Department of Physiotherapy, standing before you all, nominating myself for the post of Secretary of Jyoti Sangh, that is SJS. Jyoti Sangh is a student body council which works between body and administration to portray thoughts and beliefs to management and provide a bridge between these two bodies. मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर के जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलने का वादा है, सारा जहां न सही अपनी हद रोशन करने का इरादा है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, honorable advisor and CEO sir, respected registrar ma'am, respected dean and faculty members, all the high dignitaries and my dear JVN. I JVN Ekta Sharma, pursuing Bachelor of Homeopathic Medicine and Science, first year under the flag of Faculty of Homeopathic Sciences from Nation. As honorable advisor and CEO sir is arriving to appreciate you all, so please do join me with flag for advisor sir. सफल होने के 3 नियम हैं: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। नमस्ते ऑनरेबल एडवाइजर सर,
respected registrar ma'am, respected professor, all the higher dignitaries, faculty members, and my dear JVs. A pleasant morning to everyone present here. I am glad to see all of you in active mode, and this points to your support for me. We all are fortunate to study in this excellent and first-rate university, Jayoti Vidyapeeth Women's University, where students have ample opportunity to explore, expand, and access. Let me introduce myself. I, JVL Sanya Purohit, in design, first semester in fashion design, under the Faculty of Education and Methodology. As we all are aware, today is University Student Council Election Day. I, JVL Sanya Purohit, nominating myself for the post of nominee vice JSR, that is nominee vice JOT representative. You have got the power. Somewhere inside us is the power to change the world. So here, elections give us the power to choose the best leader among us. और हमें रास्ता खुद बनाना है. Namaste, respected sir, ma'am, all the higher dignitaries, all the faculty members, and my dear JVL. I, JVL Anjali Yadav, pursuing BMS first year under the Faculty of Ayurvedic Science. I am from the city of North, that is Alwar, Rajasthan. I have nominated myself for the post of nominee of vice JSR, that is nominee of vice Jyotisan representative. One spirited teacher of our university is our student council, which is also known as Chapishan by late Dr. Pankaj Wilson, our founder and advisor. This Chapishan is our own voice, our own right, our own strength. This is our own student council operated by the elected member of our university. Jyotisan is a bridge between respected university management and the students. संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है. जिसने रातों से जंगें जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है. नमस्ते ऑनरेबल CEO and advisor sir, registrar ma'am, higher dignitaries, dean and director, faculty members, my fellow opponents, and my dear JVL. I, JVL Mujika Yadav, pursuing Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery, first group under the Faculty of Ayurvedic Science from the esteemed University Jayoti Vidyapeeth Women's University. I am nominating myself for the post of nominee of vice Jyotisan representative, that is nominee of vice JSR. चमक गई निगाहों में, बुलंदी है ख्यालों में, मैं पत्थर से भी टकराकर उसे रेजा रेजा कर दूंगी. इस यूनिवर्सिटी ने मुझे ये मौका दिया है, एक नया बंदरा, कुछ उम्मीद की किरणें और कुछ नए गुजरने का जज्बा, कि मैं ढूंढूं अपना रास्ता खुद अपनी मंजिल का, कि मैं ढूंढूं अपना रास्ता खुद अपनी मंजिल का. Respected chairperson ma'am, registrar ma'am, and dean director, and all faculty members, and my dear JVL. From the Department of Teaching, Education and Methodology, under the Faculty of Education and Methodology. That is nominee of Jyotisan representative. I stand before today as representative of vibrant and diverse student community of our college, as we gather here to express our democratic right to choose our leader. I want to take this opportunity to share my vision for our college and why I believe I am the best candidate to lead us. ऊंच नीच से परे मजाल आंख में भरे, ऊंच नीच से परे मजाल आंख में भरे, खुदात से मैं लड़ पड़ी मशाल हाथ में लिए. ना सूर्य मेरे साथ है तो क्या नई बात है, ना सूर्य मेरे साथ है तो क्या नई बात है. मैं जुगनों की यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ. Honorable Advisor and CEO Sir, Honorable Registrar Ma'am, Respected President in charge
हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर आगे तू पहल तो कर, बढ़कर आगे तू पहल तो कर, देख काफिला खुद बन जाएगा। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने का हो इरादा तो घट जाता है दाम, अगर ना बिकने का हो इरादा कीमत और बढ़ती है। नमस्ते, a very good morning to honorable advisor and CEO sir, respected registrar ma'am, respected professor and all the dean and directors, higher authorities and my dear Jayvians. Thank you for being here today as we stand at the threshold of an exciting opportunity to shape the future of our university. For those who don't know me, I am Javian Ayushi Chaha, pursuing Masters of Computer Application from the Department of Science and Technology from this brilliant university, Jayoti Vidyapeeth University. I am honored to address you as a candidate for this position of Vice Chancellor. Together we have the potential to create a university experience that is transformative and enriching for every student. First of all, I promise not to use our position to escape classes or get pressure treatment. Secondly, I will not accept the pretty face. I do think I look pretty and dashing in this hairstyle. Here people claim that I am a loud person, but I want to address that there is a difference between outspoken and loud. In my opinion, there is nothing wrong speaking against injustice. And I think not only me, but all of us should be able to take stand when it comes to your self-respect. बदल रहे हैं मुझमें, यह देख पड़ल रहे हैं मुझमें विलीन संसार सकल, मुझमें विलीन संसार सकल, अमृत फूलता है मुझमें, संसार झूलता है मुझमें। नमस्ते all higher dignitaries, all faculty members, and last but not the least, the future director for this voting and election, my dear JVWU. I, JVWU pursuing BSc BEd 7th semester under the Faculty of Education and Methodology from this prestigious university, Jayoti Vidyapeeth Women's University. I am very thankful here nominating myself for the post of Vice Jayoti Sangh representative, that is Vice JSR. I believe that from the past year where you have trusted me for all your vote and support and elected me twice, this year I want your same love and support for the post of Vice Jayoti Sangh representative. I might have committed some mistake on the other hand, while on other hand I really have put my all hard work and integrity and responsibility to complete all my duties. If you all don't believe, I am sure this year with my all work and patience, I will make you believe. कभी डरो मत, क्योंकि डर के हारने वाले, क्योंकि डरने वाले को कायर कहते हैं और लड़ने वाला हमेशा जीतता है। नमस्ते, ऑनरेबल and advisor sir, respected registrar ma'am, all higher dignitaries, all faculty members, dean and directors. Change is the basis of development, and along with this motto, I would like to introduce myself. I, Neha Tyagi, pursuing BA LLB from the Department of Law and Management. I am nominating myself for the post of Vice GSR. अपनी वोट अपील करने से पहले आप सबको बताना चाहूंगी, हम जब भी किसी पोस्ट पर खड़े होते हैं तो यही कोशिश करते हैं सबको साथ लेकर चले, क्योंकि सबके वेलफेयर के बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है। और मैंने पर्सनली यहाँ ये चीज देखी है, लोग डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड हो गए हैं, तो मैं चाहती हूँ आप वो चीज ना करें, खुल के अपना वोट, अपना ओपिनियन सामने रखें, क्योंकि जब हम किसी पोस्ट पर खड़े होते हैं तो सबके लिए खड़े होते हैं, किसी डिपार्टमेंट वाइज हम खड़े नहीं होते।
और मेरा पर्सनली मानना ये भी है, यूनिटी और इक्वलिटी दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ज्योति संघ में भी यूनिटी का मतलब यही होता है, संगठन। अभी तो इस परिंदे की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो मैंने लांगा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, पूरा आसमान। नमस्ते all high dignitaries present over here. I, JVWU Jayoti pursuing Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery from the Faculty of Ayurvedic Science, JVWU Vidyapeeth Women's University. Jyoti Sangh fills the gap between students and management, but this popular agenda has been used every year. But taking students' perspective into consideration, I feel like we have left behind this arena. So I want to fill those gaps. So I nominate myself for the post of Jayoti Sangh representative. Student council. इसी के साथ now I would like to start my speech with enlightening these words. जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। Which is JVWU. So being a JVWU, I would make sure there won't be any differences or bifurcation on the basis of department or any other social barriers. परिवर्तन हमेशा विकास लाता है, पर परिवर्तन के बिना विकास संभव नहीं, पर लेकिन परिवर्तन हमेशा विकास नहीं ला सकता, पर बिना परिवर्तन के विकास संभव नहीं है। पसंद उसे करो जो प्रभावित करे, उसे नहीं जो पसंद उसे करो जो परिवर्तन लाए, उसे नहीं जो प्रभावित करे, प्रभावित तो लगारे भी करता है। Because making sure all voices are heard is a good key component of the college. Lastly, I would like to encourage you all to be active, take your responsibilities, work hard for the things you believe in. If you do not, then you are surrounding your faith to others. After all this, if you feel I am being a representative to you all, then please vote for Raj Rohit. अंत में इस Namaste, Honorable Advisor and CEO, respected Registrar Ma'am, all the high dignitaries, Dean and Directors, faculty members, and my dear JVWU. I, JVWU Jayoti Vidyapeeth, pursuing BMS 4th year from the Department of Yoga and Naturopathy. I am standing before you all to enlist myself for the post of JSR, that is Jyoti Sangh representative. I served the university from past 4 years, first as a class representative and currently work as a nominee JSR. I have done my best to abide by the rules and regulations voted down by the university. The world's biggest power is युवा। जब एक युवा जनहित की ओर कार्यरत करता है तो वह किसी विशेष क्षेत्र, जाति, धर्म, संप्रदाय को लाभ न देते हुए अपनी पूरी ताकत, मेहनत और लगन
देश हित में लगा देता है। इसीलिए कहा जाता है छात्र निर्माण ही राष्ट्र निर्माण है। और जब ये युवा शक्ति किसी नारी का रूप ले ले तो उस क्षेत्र, उस संस्था के विकास को कोई नहीं रोक पाता। और मुझे पूरा विश्वास है हमारी ज्योति विद्यापीठ ऐसी नारी शक्ति का जीवंत उदाहरण है। इस शक्ति को दर्शाती है हमारी यूनिवर्सिटी की टैगलाइन यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन आप सब जानते हैं none of us has the capacity to run this university alone. It runs because all of us work together. Its grandeur illuminates because this institution has us, it has you. And if you all will help me out with making up my instead of making cattle in the air, I assure you to do my level best and give my 100% to fulfill all the responsibilities as a member of Jyoti Samaj. नमस्कार, आप देख रहे हैं JVTV। मैं रेणुका चौधरी आप सभी के साथ। जैसा कि जयोति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ इलेक्शन हो रहे हैं। ये इलेक्शन 2 चरणों में होने वाले हैं, जिसका आज पहला चरण यानी कि पहला दिन है। तो आप देख सकते हैं छात्राओं में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है। मतदान करने के लिए भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसमें विश्वविद्यालय के एडवाइजर सर, रजिस्ट्रार मैम ने और अन्य कई फैकल्टी मेंबर्स ने भी मतदान किया है और एक अच्छे कैंडिडेट को चुना है। तो आप देख सकते हैं लगातार मेरे पीछे भीड़ बढ़ती ही जा रही है एक अच्छे कैंडिडेट को चुनने के लिए और एक अपना उम्मीदवार चुनने के लिए। तो अब आइए हम बात करते हैं अन्य छात्राओं से कि वो किसको सपोर्ट कर रही है, अपना मतदान किसको दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं JVTV। मैं रेणुका चौधरी आप सभी के साथ। जैसा कि आज जयोति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय में ज्योति संघ इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें उसका आज पहला दिन है। तो आइए हम बात करते हैं विश्वविद्यालय के एडवाइजर एंड CEO सर से। आइए। नमस्ते सर। नमस्ते सभी बेटियाएं। तो सर, आप उनको जो कैंडिडेट आज खड़े हुए हैं इलेक्शन के लिए ज्योति संघ मेंबर रिप्रेजेंटेटिव के लिए, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैं यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता हूं और हमारी तरफ से सभी बेटियों को यही मैसेज है कि आप अपना लीडर अपने ट्रस्ट और अपने बिलीफ और अपने ओपिनियन से करें। दूसरों के वोट को आप अपने वोट से काउंट ना करें, क्योंकि हर एक वोट मायने रखता है। हर एक वोट से पूरे इलेक्शन के परिणाम पलटे जा सकते हैं। तो इसलिए आप अपना वोट वाइजली दें और जिस कैंडिडेट पे आपको भरोसा है उसे आप वोट करें, जो आपकी प्रॉब्लम्स हम तक पहुंचाए और हमारी आवाज स्टूडेंट्स तक पहुंचाए, आप उसे ही वोट करें। तो आइए हम बात करते हैं विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट इंचार्ज सर राघव सर से। तो आइए बात करें। नमस्ते सर। नमस्ते सर, जैसा कि ज्योति संघ इलेक्शन आज का पहला दिन है, इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय ये इंश्योर करता है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज है, डिसीजंस है, उसमें छात्राओं की भागीदारी पूर्ण रूप से हो। उसी के तहत ये हर साल इलेक्शन का आयोजन किया जाता है, जिसको कि हम ज्योति संघ बोलते हैं। मेरा मैसेज सभी को है जिनको वो अपना वोट कास्ट करना है कि अपने इमोशंस को यूज ना करके अपने माइंड को यूज करते हुए अपना वोट कास्ट करें और उसी कैंडिडेट को वोट दें जो उस पोजीशन के लिए डिजर्व करता है, जो स्टूडेंट की बात को मैनेजमेंट तक सक्रिय रूप से पहुंचा सके और मैनेजमेंट के एजेंडा को स्टूडेंट्स तक सक्रिय रूप से ला सके। सो ऑल द बेस्ट टू बोथ जो अपना वोट कास्ट करेंगे आज, और जितने भी कंटेंडर्स हैं जो इलेक्शन कंटेंड कर रहे हैं, उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए हम बात करते हैं विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार मैम से, हेमा मैम से। तो आइए बात। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, जैसा कि आज ज्योति संघ की इलेक्शन है और उसका आज पहला दिन है, तो आप जो कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? सबसे पहले तो सभी जेवीएंस को मैं नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही पावन पर्व पे हम लोग इस बार ज्योति संघ का इलेक्शंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और क्योंकि देवी माँ की आराधना और पूजा 9 दिनों तक चलेगी और उसी दिनों में हमारे ज्योति संघ के इलेक्शंस भी हो रहे हैं। तो ज्योति संघ में जो भी छात्राएँ वोट देने जा रही हैं या जो भी छात्राएँ वोट के लिए इलेक्ट हुई हैं, नॉमिनेट की हैं उनको, वो सभी नारी शक्ति का ही एक स्वरूप है और अपनी अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन बच्चे कर ही रहे हैं। आप देख रहे हो पीछे से कितना शोर आ रहा है। और मेरा अपनी ओर से बच्चों को बस यही एक मैसेज है कि आप जिस भी पोजीशन के लिए आप वोट देने के लिए जा रहे हैं या आप इलेक्ट हुए हैं, उसकी गरिमा को बनाए रखें, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यूज़ को समझें। सिर्फ
शो ऑफ करने के लिए इलेक्शंस में ना खड़े। तो अभी हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डॉक्टर मिनी मैम। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आज जैसे कि ज्योति संघ का चुनाव हो रहा है, तो आप जो भी कैंडिडेट हैं उन सभी को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से और क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट्स। जितने भी कंटेस्टेंट अलग अलग पोजीशंस के लिए खड़े हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट, और इन एडवांस कांग्रेचुलेशंस टू द सिलेक्टेड वंस। जो भी सिलेक्ट हो, मेरा मानना ये है और विशेष ये है कि वो अपने उस काम को बहुत अच्छे से करें जिस काम के लिए वो नॉमिनेट हो रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है कुछ स्टूडेंट्स, आइए उनसे बात करते हैं। अभी आप जैसे कि मौजूद है वोटिंग में, तो आपका आगे का क्या प्लान है? कैंडिडेट्स को जो वोट करना है, तो आप क्या सोच के वोट कर रही हैं उन्हें? ताकि वो हमारे मतलब फ्यूचर के लिए अच्छे हो और हमारी बात हम वो डिजर्व करते हैं और हमारे सपोर्टिंग है, हम लोग की बात सुनते हैं, हम लोग उनको जानते हैं और कैंपस की फैसिलिटीज के बारे में हर एक चीज सोच के हम लोगों ने उनको मतलब वोट करना। चीटिंग करती है टीम के सपोर्टर से कि वो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों। नमस्ते। नमस्ते। तो आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं प्रगति की टीम को सपोर्ट कर रही हूँ। उसकी टीम में 5 मेंबर्स है। पहली पोस्ट के लिए प्रगति, फिर दूसरी पोस्ट के लिए अवंतिका, तीसरी पोस्ट के लिए श्रद्धा, चौथी पोस्ट के लिए अंजलि और 5वीं पोस्ट के लिए प्रियानी। तो आप अपने कैंडिडेट को जब सपोर्ट कर रहे हो तो उसमें से क्या विशेषता है तो आप उसको सपोर्ट करें? अभी रिसेंटली मैं JSR रही हूँ, उसने मेरे अंडर काम किया है, तो उसने बहुत बेस्ट काम किया है, इसीलिए मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ। इसलिए नहीं कि वो मेरी फ्रेंड है, लेकिन इसलिए मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी लीडर है, बहुत अच्छी लीडर है वो। और एक साथ क्या कहना, आप क्या अभी हमारे साथ मौजूद है कुछ कैंडिडेट्स के सपोर्टर्स, आइए उनसे बात करते हैं। तो अभी आप किसको वोट कर रहे हैं? अर्पिता बोरा, आप सब देख रहे हैं, हम अर्पिता बोरा के साथ हैं। अर्पिता बोरा को वोट करे, तो आपका ये वोट करने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि अर्पिता बोरा एक अच्छी लीडर है और हम जानते हैं सब, क्योंकि वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करती है और उसमें वो सब क्वालिटी है जो एक नेता की होनी चाहिए। जीतेगी वो जीतेगी, अर्पिता बोरा जीतेगी, जीतेगी वो जीतेगी, अर्पिता बोरा जीतेगी। तो अब हमारे साथ मौजूद है एक कैंडिडेट और उसके सपोर्टर्स, तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। तो आप किस पोस्ट के लिए खड़े हुए? मैं वाइस JSR। तो आपने इस पोस्ट को मतलब आप एक लीडर के रूप में छात्राओं के सपोर्ट के रूप में खड़े हुए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मेरा जितना हो सकेगा मैं बहुत पूरी कोशिश करूंगी कि सबका साथ दे सकूं, उनकी बातें मैनेजमेंट तक पहुंचा सकूं। और आपका नाम? आयुषी चाहर। तो आइए हम बात करते हैं इनके सपोर्टर्स से। हेलो। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? मैं आयुषी चाहर को सपोर्ट कर रही हूँ। तो आप अपने एक नेता में किस क्वालिटी को देखकर आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? वो यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर 2 बार रह चुकी है, वो प्लेयर ऑफ द सीरीज रह चुकी है स्पोर्ट्स में, इसलिए मैं उनको सपोर्ट, उनके में सारी क्वालिटी है। आप क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? आयुषी चाहर को वोट करेंगे हम।
लीजिए, आराम से नमस्कार, आप देख रहे हैं JVTV। मैं हूं निवेदिता भूमिक आप सभी के साथ, और इस वक्त मैं मौजूद हूं ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के ओपन ऑडी में, जहां पर हम देख सकते हैं कि आज चुनाव का दूसरा दिन है। ज्योति संघ इलेक्शन हो रहा है और उसका दूसरा दिन हम देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। सारे बच्चे यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे उनके सपोर्टर्स हैं, तो आइए चलकर उनसे बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते आप सभी को। तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? तो मेरी बात पहले सुन लीजिए आप। तो पायल को आप सपोर्ट कर रहे हैं, और किस लिए? मतलब क्या आप चाहते हो कि आपका जो उम्मीदवार जो खड़ा हो उससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? वो डिजर्विंग है, हमारे लिए बहुत कुछ करेगा, वो एक नया चेंज लेके आएंगे हमारे लिए। हम उन पे बहुत होप है हमारी कि वो बहुत कुछ बदल सकते हैं, जो हम हमारे फेवर में होंगी सारी चीजें। पायल बस हमारे लिए नई सूरज की किरण बन के आएंगी। अरे वाह। और पायल के अलावा और किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? और मुद्रिका। ओके, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो स्टूडेंट काउंसिल का जो इलेक्शन होता है, इसका क्या मतलब मेन मोटिव आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जो मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स के बीच की बात मैनेजमेंट तक पहुंचाए, उनकी प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट तक पहुंचाए, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसका मैनेजमेंट अच्छा ही सॉल्यूशन दे। तो एज अ क्या हमारा उम्मीदवार कह सकते हैं हम उनको, इसलिए इलेक्शंस होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पिछले साल जो भी थे इलेक्टेड, ओके, तो पिछले साल क्या खामियां थी और इस साल आप क्या चाहते हो कि क्या भरपाई हो उसकी? पिछली बार बहुत सी ऐसी बातें थी जो मैनेजमेंट तक नहीं पहुंच पाई थी, जैसे डे बोर्डर स्टूडेंट है उनकी भी प्रॉब्लम्स नहीं पहुंच पाई थी, और हमारे भी जैसे कुछ है रीजंस वगैरह, सबके हैं अपने अपने रीजंस, तो वो मैनेजमेंट तक नहीं पहुंच पाए थे। तो इस बार हम पायल राजपुरोहित से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बातें वहाँ तक पहुँचाए, हमारा सपोर्ट करे। आप कुछ बोलना चाहिए? बिना बायसनेस की हमारी पायल बस सबका सपोर्ट करेंगी। ओके, तो एक बार फिर से चीयर्स कर दीजिए पायल के लिए। नमस्ते आप सभी को। किसका सपोर्ट कर रहे हो आप? क्या? अच्छा, तो मेरे को एक बात बताओ कि अर्पिता बोरा एज अ कैंडिडेट मतलब क्या देखकर आप चूज कर रहे हो? एक तो वो हमारी क्लासमेट है, दूसरी वो मतलब बहुत अच्छी है, उसमें लीडर क्वालिटीज हैं, और हमने भी उसके साथ, वो सीआर भी रही है 1 साल, उसको काफी अच्छे से काम करते हुए देखा है, बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस गेन किया है उसने। अब और हायर पोस्ट पे आएगी तो और अच्छे से काम करेगी यूनिवर्सिटी के लिए, हम सबके लिए, सभी जेवीएंस के लिए। ओके, तो ज्योति संघ के जो 5 पोस्ट होते हैं उनसे क्या क्या उम्मीदें रखते हो आप? हर साल वोट्स होते हैं, हर साल कोई ना कोई जीतता है, कुछ आपके लिए करता है या कुछ रह जाता है, तो इस साल आपकी क्या उम्मीदें हैं? इस साल भी यही है कि कुछ चेंज आए, जैसा हर बार सोचते हैं, हर बार नया लीडर आता है, कुछ चेंजेस आते हैं, तो ये भी इस बार भी यही है कि अपनी यूनिवर्सिटी के लिए कुछ डिफरेंट हो। सबसे मेन तो उम्मीद यही होती है सबको कुछ डिफरेंट हो अपने लिए। इस साल क्या डिफरेंसेस आप लोग उम्मीद कर रहे हो कि कुछ अलग हो इस साल? छुट्टी होनी चाहिए बस। क्या उम्मीदें हैं जो डिफरेंट हो हर साल से? इस साल क्या चाहिए आपको? इस साल नया नेता है और वो हमारी तरफ से है, हम सपोर्ट करें उसे बस। ठीक है, एक और बात। नया नेता जैसे अर्पिता बोरा, ये बहुत अच्छी लीडर है, उसमें वो क्वालिटी भी है जो एक लीडर में होती है, और इसका बिहेवियर सभी के लिए बहुत अच्छा है। तो प्लीज वोट एंड सपोर्ट अर्पिता बोरा। दुनिया बेस्ट है, अर्पिता बोरा बेस्ट है, बाकी दुनिया बेस्ट है, अर्पिता बोरा बेस्ट है।
साथ मौजूद है यहाँ पे एक कैंडिडेट एकता शर्मा और उनके सपोर्टर्स भी यहाँ पर मौजूद है, तो आइए चलकर बात करते हैं। नमस्ते आप सभी को। नमस्ते। तो एकता, आप एसजेएस के लिए खड़े हो रहे हो, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। क्या क्या मतलब क्या प्लानिंग है अगर आप जीत जाते हो? ठीक है, अगर आप जीत जाते हो तो क्या क्या आप करोगे? मैं भी फ्रेशर हूँ और काफ़ी फ्रेशर्स की डिफ़िकल्टीज मैं समझ सकती हूँ एकदम अच्छे से, और मैं पूरी ट्राई करूँगी उनकी कोशिश को सॉल्व करने की, और इनकेस नहीं होती है तो मैं आगे मैनेजमेंट तक पहुँचाऊँगी। ओके, तो क्या क्या आपसे स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, आपको क्या लगता है? लीडरशिप क्वालिटी, और पर्सनल लेवल पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मेरा यहाँ पे है, तो हाँ। ओके, तो नॉट एज अ लीडरशिप क्वालिटी बट अदर क्वालिटीज जो एक्सेप्शनल हो बाकी लोगों से, वो क्या है आप में? इक्वालिटी, जस्टिस, स्टूडेंट्स वेलफेयर, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी मेरी काफ़ी अच्छी है। तो अब हमारे साथ मौजूद है कुछ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स और उनके सपोर्टर्स, तो आइए चलकर उनसे बात करते हैं। तो प्लीज आप हमारे लिसनर्स को ये बताइए कि ज्योति संघ की क्या इंपॉर्टेंस है? ज्योति संघ सबसे पहले एक चेन की तरह काम करता है स्टूडेंट बॉडीज के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में, और सबसे बड़ा काम ज्योति संघ का यही है कि जो स्टूडेंट की वॉइस होती है, जो अनहर्ड होती है, उसको एम्पलीफाई करके मैनेजमेंट तक पहुंचाना, उनकी जो सारी दिक्कतें हैं उन्हें बताना, और मैनेजमेंट को ये बताना कि हर छोटी चीज़ें स्टूडेंट से ही रिलेटेड है और वो सारी चीज़ें आपको ज्योति संघ करके देगी। तो आप हमारे लिसनर्स को ये बताओ कि अगर आप जीत जाते हो तो मतलब क्या चेंजेस आप लाना चाहोगे हमारी यूनिवर्सिटी में? अगर हम जीत जाते हैं, हम कोई फेक प्रोमिसेस नहीं कर रहे हैं, हम कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे कि हम ये चीज़ें अलाउ कर देंगे, या हम जितने भी डे बॉर्डर्स के इशूज़ है जैसे लंबी लाइन में खड़े होना वगैरह, वो हम बंद नहीं करवा सकते, क्योंकि जब से ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है वो यहाँ पे चलता है, वो नेसेसरी है। लेकिन जो हमारे हाथ में है, जो हम मैनेजमेंट तक पहुँचा सकते हैं बिल्कुल कन्विंसिंग वे में, वो हम उन तक ले जा सकते हैं। जो मैनेजमेंट की भी कुछ इश्यूज़ होते हैं जो हम स्टूडेंट्स तक ले आ सकते हैं, कोई भी पॉलिसीज़ हो जो हमें स्टूडेंट्स तक कन्वे करनी होगी, वो हम सब करेंगे, लेकिन हम कोई फेक प्रोमिसेस नहीं करेंगे। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे वोटर्स को? मैं वोटर्स को ये कहना चाहूंगी कि एक के पीछे एक मत चलो, खुद के डिसीजंस पे जाओ कि तुम क्या सोचते हो। ये नहीं कि तीन हमारे दो दोस्तों ने ये कह दिया तो हम वो करें। सब इंसान का अपना दिमाग होता है, उनके पास अपना राइट है वोट देने का, तो वो अपने हिसाब से चले। हर इंसान को अपनी एक वाइब आती है, एक इंस्टिंक्ट आती है एक इंसान से, तो उसके बात करने के तरीके से, उसके पिछले बिहेवियर से, क्योंकि देखो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम पे सब बहुत अच्छे हैं क्योंकि हमें जरूरत है, हम सबके लिए बहुत अच्छे हैं, हम हमारे अपोनेंट सब एक पर जिस चीज पे हम जज करते हैं वो है उनका प्रीवियस बिहेवियर, जो पिछले साल का बिहेवियर रहा है, उनसे जैसी बातें हुई हैं वो सब। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भीड़ चाल ना चले, एक के पीछे एक नहीं। तुम जो सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है और तुम्हारा क्या मानना है, तुम्हें कौन डिजर्विंग लगता है, उसके बेसिस पे वोट करो। तो आप सबसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप लोगों ने आपने आपको नॉमिनेट किया, तो आपने क्या सोच के नॉमिनेट किया है? सबसे पहले तो एक बात आती है नॉमिनेट करने पे कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। तो लीडरशिप क्वालिटी सिर्फ ये नहीं होती कि आप एक जगह रह के कमांड दे पाएँ, लीडरशिप क्वालिटी वहाँ पे भी आती है कि आप लोगों को इकट्ठा कर पाएँ, आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाएँ, इंटरैक्टिव हो। तो मैं अपने आप को इस बेसिस पे नॉमिनेट किया है कि मैं इंटरैक्टिव काफ़ी हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे लोगों से बात करना पसंद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवी टीवी। मैं हूं निवेदिता भौमिक आप सभी के साथ, और इस वक्त मैं मौजूद हूं ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के ओपन ऑडी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं क्योंकि आज ज्योति संघ इलेक्शन का सेकेंड डे है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आज सेकेंड डे है इलेक्शन का। इलेक्शन के वोटिंग्स जो है हो चुके हैं, बच्चों ने अपने वोट्स दे दिए हैं अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को। अब देखना ये है कि रिजल्ट क्या आता है और कौन बनता है ज्योति संघ के वो 5 मेंबर्स। तो आइए चलकर बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं।
तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के कुछ स्टूडेंट्स। तो आइए चलकर उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो कितने ज्यादा एक्साइटेड है इलेक्शन को लेकर। नमस्ते आप सभी को। क्या लगता है, मतलब कितने ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हो, क्योंकि वोटिंग हो चुकी है, आपने दे दिया है वोट अपने अपने कैंडिडेट्स को, तो क्या लगता है अभी? मतलब दोनों टीमें बहुत ज़्यादा ही मतलब ताकतवर है, दोनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और रिजल्ट 50-50 में चल रहा है। कुछ पता नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, बस इसीलिए जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम ये जानने के लिए एक्साइटेड है कि कौन सी टीम जीत सकती है। ओके, तो एक्साइटमेंट लेवल कितना ज्यादा हाई है? बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी हैं, कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। किसके सपोर्टर्स हो आप लोग? प्रगति दी एंड अवंतिका, ओके, तो ये जो 5 मेंबर सेलेक्ट होंगे फॉर द होल ईयर, तो क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी उन सभी से? कि वो हमारे स्टूडेंट्स की वॉइस बने और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स उनको आगे लेके चले और उसको सॉल्व करने में हमेशा आगे रहे। नमस्ते। नमस्ते। और कैसा लग रहा है आपको, एक्साइटेड हो आप? हाँ, हम रिजल्ट सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड है। किसको सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, जो भी टीम जीते वो। जो भी टीम जीते किसी के तो सपोर्टर हो गए ना। अब कैसे? प्रगति चौधरी। ओके, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? प्रगति चौधरी। क्यों? डिजर्विंग है, प्लस उन्होंने पिछले ईयर काम अच्छा किया है उन्होंने। ओके, तो इस साल क्या क्या उम्मीदें हैं उनसे? इस साल उम्मीदें हैं कि और ज्यादा वो काम करेंगी, उनके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लोग को चांस मिलना चाहिए। ओके, और आप? सेम, मैं तो फ्रेशर हूँ। अच्छा, ओके, फ्रेशर में से जो भी कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनमें से आप किसको सपोर्ट करते हो? एकता, जो SGS के लिए। ओके, एकता को आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो, किस वजह से? क्योंकि उनमें अच्छी क्वालिटीज हैं और वो काम करेंगी। टोटल में मैं ये कहूँगा कि जो करंट ज्योति संघ ने काम किया है वो अप टू द मार्क है, और आगे भी ज्योति संघ वो भी इसी तरह मैनेजमेंट के साथ मिलकर अपना काम करें, क्योंकि स्टूडेंट और मैनेजमेंट को अलग चीज़ है। आप सभी को बताइए, आज मैं जैसे बोल रहा हूँ आप लोगों से बिल्कुल कनेक्टेड होकर फील, बिल्कुल आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों के बीच में खड़ा होकर बोल रहा हूँ। आपको इसी तरह लग रहा हो, क्योंकि हम और आप कोई अलग चीज़ नहीं है, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। हम बस ये है कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सभी का यहाँ पे ध्यान रखने के लिए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, आपकी सुरक्षा करना, क्योंकि आपके पेरेंट्स हम यहाँ पे आपको यहाँ पर छोड़ के गए हमारे हाथ। रक्षिता मान, रक्षिता।
Jyoti Sangh 2023-24 is Muskan Mehra. जो भी विनर है ओनली 55 वोट से वो जीता है। तो अंजलि एंड Nominee wise JSR 23-24 is the vice JSR for session 23-24 is एक सेकंड अवंतिका सिंह तोमर। The Jyoti Sangh representative for academic session 2023-24 is Payam Rajput। If I will not fulfill my duties, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ज्योति संघ के पांचों विनर्स। आइए चलकर उनसे बात करते हैं। नमस्ते एवरीवन एंड कांग्रेचुलेशंस ईच वन ऑफ यू। तो कैसा लग रहा है आपको जीत के?
अच्छा लग रहा है, जितना लोगों से एक्सपेक्ट किया उतना लोगों ने सपोर्ट किया भी है, और मैं चाहती हूँ कि जिस मोटो से मैं खड़ी हुई थी एटलीस्ट वो मोटो पूरा कर सकूँ मैं। मोटो क्या था आपका? मेरा स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स होती है मेन उनको सॉल्व करना है, बाकी सारे काम तो मैनेजमेंट करवाएगा और करवाता ही रहेगा आगे आने वाले साल में। और जो मेन प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व नहीं हो पाती हमसे, मतलब पहुंच ही नहीं पाती मैनेजमेंट तक, मेरा वही है कि उन प्रॉब्लम्स को लेके जाऊँ मैं एटलीस्ट मैनेजमेंट तक। ओके, तो आप इसके पहले भी ज्योति संघ की मेंबर रह चुकी हैं, बट इस वक्त आप टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, तो कैसी फीलिंग हो रही है? अच्छा लग रहा है। उस टाइम ये था कि प्रेशर नहीं था किसी भी काम को लेके, जो सीनियर्स बोलते थे वो कर दो, खुद को कोई टेंशन नहीं थी। अब ये है कि टीम को लेके चलना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो थोड़ा तो प्रेशर भी है, थोड़ी खुशी भी है। ओके, सो कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, पर बहुत डर भी लग रहा था जब रिजल्ट अनाउंस हो रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, क्योंकि मैं एज ए इंडिविजुअल कैंडिडेट की तरह खड़ी हुई थी, तो मेरे को जीतना बहुत मुश्किल था। मैं बहुत मुश्किल से जीती हूँ शायद, पर जैसा कि सर ने बताया कि आप बहुत वोटों से जीते, तो मैं बहुत खुश हूँ। ओके, तो पूरी जर्नी आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि कैसा था? मेरे दोस्तों को इलेक्शन से बिल्कुल वो नहीं था, उनको बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता था, पर मेरे डे बोर्डर्स, मेरे हॉस्टलर फ्रेंड्स इतने सपोर्टिव थे कि बयां भी नहीं कर सकती हूँ ये चीज़ कि उन्होंने मेरा कितना साथ दिया है, कितना वो किया है मेरे लिए, एफर्ट डाले हर किसी के लिए, और बस यही। ओके, तो मैं आप तीनों से पूछना चाहूँगी, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगी कि कैसा लग रहा है फिर से जीतकर? इसके पहले भी आप रह चुके हो। मुझे अच्छा लग रहा है। आई बिलीव कि अभी तक बाकी स्टूडेंट्स में अभी तक बिलीव है मेरे ऊपर, फेथ है। लोगों को कई जगहों पे ओपोनेंट्स में ये बोला गया कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं काम नहीं कर पाती। आई गेस कि उनके अंदर ये बिलीव था, इसलिए उन्होंने मुझे दोबारा जिताया है, प्रूव करवाया है, तो मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई वेन में नहीं जाने दूंगी। आई ट्राई माई एवरी पॉसिबल लेवल बेस्ट कि मैं उनकी सारे काम पूरे कर सकूँ, और सारे इवेंट्स में, सारे प्रॉब्लम्स में अपना सारा 100% दूँ, ताकि उनकी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़े। ओके, सो आप तीसरी बार आप मेंबर बने हो ज्योति संघ के, तो इस बार क्या न्यू लाओगे आप, क्या चेंजेस? इस बार न्यू ये है कि हर बारी हम एक एक्सपीरियंस लेके जाते हैं हर ज्योति संघ के साथ, और वो सारा एक्सपीरियंस, वो सारे बॉन्ड्स, वो सारे रिलेशनशिप्स अभी तक मैंने ट्रेजर करके रखे हैं। तो मेरी यही बात रहेगी कि ये जो सारी नई चीजें हो रही है यहाँ पे, जो जैसे कि जो पहले नहीं हो पाती थी, पहले हम CR से इलेक्ट होते थे, तो इस बारी एक नई चीज हुई कि हमारा सबसे इंटरेक्शन बढ़ा। इस बार सभी बच्चों ने हमें इलेक्ट किया, तो मैं इस बार नया यही करूंगी कि मैं सारे बच्चों की बातें सुन सकूं, सबकी प्रॉब्लम्स एड्रेस कर सकूं, और JSR तक पहुंचा सकूं। जैसा उन्होंने बताया कि वो टीम को साथ में लेके चलेंगी, मैं उन तक पहुंचाऊं, वो मैनेजमेंट तक पहुंचाऊं। ओके, तो मैं आप दोनों से बात करना चाहूंगी क्योंकि आप फ्रेशर्स हो। ओके, कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम में जीत कर? बहुत अच्छा लग रहा है। टीम की हमारी पूरी, ऑफ कोर्स थैंक्स टू प्रगति दीदी, मैरनिशा दीदी, आकांक्षा दीदी, और अब जो भी ग्रजेस थे, जो भी था, सबको साइड में रख के टीम के साथ काम करेंगे, हमारी JSR एंड पूरी टीम। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे सीनियर्स को स्पेशली, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बोला कि तुम नॉमिनेट करो, खुद को तुम जीत सकती हो। और उसके बाद बहुत सारे लोग, इनको थैंक यू बोलना है, सभी को थैंक यू, और मेरे फ्रेंड्स को थैंक यू। और बस अब मैं अपनी टीम के साथ अच्छे से काम करूँगी, उनको रेस्पेक्ट करूँगी, और सारे चीज़ें को। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच।